नमस्कार, मैं आपकी प्रिय आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के रंग मंदिर में श्री जगत गुरु पंचाचार्य जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीदर में कल की बारिश के कारण मौसम में हल्का सा बदलाव रहा। बुमई ने कहा कि भाजपा आलाकमान कैबिनेट विस्तार पर फैसला करेगा। कांग्रेस दंगों को बढ़ावा दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है, भाजपा प्रमुख का आरोप। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पीएम मोदी बोले, पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधार हैं। आप दिल्ली जैसे शहर को संभाल नहीं सकते। पवार ने शाह पर साधा निशाना, उठाए कई सवाल। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर शहर के रंग मंदिर में श्री जगत गुरु पंचाचार्य जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा मुख्य अतिथि रहे। वहीं केपीसीसी कार्याध्यक्ष एवं भाल के विधायक ईश्वर खंडरे, राजशेखर पाटिल, जहीराबाद के विधायक बीबी पाटिल सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕರಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋ ಮಾದೇವ ಸರ್ವೇಶಾಮಾತ್ಮಮಾಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುರುರೂಪೇಣ ವರ್ತತೆ. ದೇವರ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಣೋದು ಹೆಂಗೆ, ನೋಡೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಗುರು ರೂಪೇಣ ಬರ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿಂದ ನೀವು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಪಂಚಪೀಠಗಳಲ್ಲ ಇಡತಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಯಾರೋ 5 ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತವರು ಮಂತ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂಥವರು. ಆದರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಂಭಾಪುರಿ ಧರ್ಮಪೀಠ ಸುತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟಂಥ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿಯೇ ಕಂಡ್ರನು. ಆದರೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟಂಥ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಗುರು ವಿರಕ್ತರು ಅನೇಕ ಸಲ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬರೀ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು विशेषವಾಗಿ बधाई देना चाहता हूँ। रेणुकाचार्य की जयंती सरकार की तरफ से मनाने का काम किया गया। रेणुकाचार्य जी बोले तो वीरशैव की फिलॉसफी के जगत गुरु माने जाते थे। उन्होंने रिलीजन का फाउंडेशन बनाने का काम किए थे। उसके बाद नए नए पीठ स्थापन किए थे, जो आज 5 पीठ हमारे भारत देश में है। वीरशैव समाज खास करके कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, यूपी, एमपी सभी ಪಂಚಪೀಠ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೀದರು, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಮಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಥ ಜಗತ್ತುಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ನಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೇನೆ ನಾನು 4 ಮಾತು ಬಿಡಾಬಿಡ್ತೀನಿ. बीदर में कल शाम में कुछ देर की बारिश ने मौसम को सुहाना किया, लेकिन आज सुबह से भले ही धूप का प्रकोप नहीं है, लेकिन गर्मी जारी है। हालांकि कल की बारिश के कारण रात में ठंडी हवा रहने से मौसम ठंडा रहा। आज आसमान में बादल रहने से धूप का प्रकोप कम रहा, लेकिन गर्मी में कोई खास कमी देखने में नहीं आई। केपी के विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज बीदर दक्षिण क्षेत्र के कुताबाद में जय भीम संगठन द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम में अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण करने के बाद काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और समाज सेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान संगठन के अध्यक्ष भगत शिंदे, उपाध्यक्ष संदीप ने किया। इस अवसर पर सदस्य श्रीनिवास, जयप्रकाश, सैदप्पा, आयोजक बकप्पा, विनोद, शिव कुमार, सतीश, शिवानंद और देवप्पा आदि उपस्थित थे। हमारे सहायक संपादक समीर खान का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्हें इस बारे में भाजपा आलाकमान से चर्चा करने के बाद ही पता चलेगा। बोम्मई ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, मुझे पार्टी आलाकमान के साथ चर्चा के बाद ही इस बारे में पता चलेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या कैबिनेट में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि यह घोषणा की जाएगी। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले दंगों को बढ़ावा देने और अराजकता जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया और यहां तक कि इसे भ्रष्टाचार की गंगोत्री भी कहा। उन्होंने राज्य में सांप्रदायिक दंगों और दंगों को रोकने के लिए मजबूत कानूनों और कदमों की वकालत की, जिसमें इसके पीछे लोगों की संपत्ति जब्त करना शामिल था। राज्य में सत्तारूढ़ दल के प्रमुख 3 टीमों में नेताओं के राज्यव्यापी दौरे के हिस्से के रूप में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद बेंगलुरु में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिसका उद्देश्य भाजपा को जमीनी स्तर से तैयार करना था। 2023 विधानसभा चुनाव। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें अगले विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतने के लिए कहा है, जैसा कि भाजपा आलाकमान ने किया था। हमने पार्टी नेताओं से 6 महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने को कहा है। शनिवार को यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि हुबली हिंसा के पीछे भाजपा का हाथ है। श्रीराम सेना की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को बुलडोजर का उपयोग करके इसे ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि यह कर्नाटक में सांप्रदायिक सद्भावना को नुकसान पहुंचा रहा है। पीएसआई परीक्षा में कथित अनियमितताओं में एक बड़ी सफलता के रूप में महाराष्ट्र सीआईडी पुलिस ने शनिवार को मामले के मुख्य आरोपी रुद्रगौड़ा डी पाटिल को अपनी हिरासत में ले लिया है। आरोपी को कलबुर्गी शहर लाने के लिए जांच टीम महाराष्ट्र पहुंच गई है। रुद्रगौड़ा पर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए चुनिंदा उम्मीदवारों को जवाब देने का आरोप है। जांचकर्ताओं के अनुसार संदिग्ध ने पूर्व में विभिन्न पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं में इसी तरह की अनियमितताएं की हैं। सीआईडी पुलिस ने शुक्रवार को रुद्रगौड़ा के भाई और अफजलपुर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मंथेश गौड़ा को गिरफ्तार किया था। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी का मूड उत्साहित है, क्योंकि किसानों के साथ जुड़ने की उसकी पहल ने उसे राज्य के हर गांव तक पहुंचाने में सक्षम बनाया है। राज्य के प्रमुख दल भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस उभरती पार्टी के विकास और राजनीतिक कदमों से चिंतित है। आप अपना आधार बढ़ाने के लिए तैयार है। कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर की अध्यक्षता में कर्नाटक किसान संघ के साथ समझौते के बाद पार्टी के नेता राज्य में आधार को मजबूत करने के लिए अन्य कृषि संगठनों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आप किसानों को विधायक बनने और उनकी सदियों पुरानी शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने का आह्वान करने जा रही है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। देश भर में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से इस दिन का आयोजन किया जाता है। 73वें संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 में इसको जोड़ा गया था। हर साल सत्ता के विकेंद्रीकरण के ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करने के मकसद से भारत 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है। यह दिन पहली बार अप्रैल 2010 में मनाया गया था, जो इसे भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक बनाता है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, आप सभी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, जिनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है। आइए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी पंचायतों को और अधिक सशक्त करने का संकल्प लें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने देश में सांप्रदायिक तनाव और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर भाजपा नीति केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। शरद पवार ने विदेशी नेताओं को अकेले गुजरात में आमंत्रित करने के केंद्र के फैसले पर भी सवाल उठाया। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राकंपा की एक रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा, मुझे खुशी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता गुजरात का दौरा कर रहा है, लेकिन चाहे वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, सभी को गुजरात ले जाया गया, न किसी अन्य राज्य में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा, यह दिखाता है कि दिल्ली के शासक दूसरे राज्यों के बारे में क्या सोचते हैं। इस महीने की शुरुआत में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हालिया हिंसा के बारे में बात करते हुए राकंपा सुप्रीमो ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी को सांप्रदायिक दंगों से बचाने में विफल रहे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने
रविवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। मिश्रा को पुलिस ने जेल भेज दिया है। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए उन्हें 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया और कहा उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया, पीड़ितों को कार्यवाही में भाग लेने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आशीष मिश्रा को दिया गया सरेंडर करने का समय कल यानी 25 अप्रैल को खत्म हो रहा था। माना जा रहा है कि जैसे कि हफ्ते के पहले दिन सोमवार को कोर्ट में भीड़ को देखते हुए छुट्टी वाले दिन यानी रविवार को ही मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया। हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने पुलिस कस्टडी की मांग को ठुकराते हुए यह फैसला सुनाया है। नवनीत और रवि राणा को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। अब दोनों को 6 मई तक जेल में समय गुजारना होगा। दोनों की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा का संक्षिप्त विवरण देते हुए शनिवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि दोनों देश हरित प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग और व्यापार सौदों पर एक साथ काम करने का विशाल एजेंडा साझा करते हैं जो विकास और समृद्धि लाएगा। बोरिस जॉनसन ने ट्विटर पर पोस्ट किए एक वीडियो संदेश में कहा, हम भारत में 2 शानदार दिनों के दौरे को समाप्त कर रहे हैं और अब हमारे पास जो एजेंडा है वह बहुत बड़ा है और यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। आलिया भट्ट ने पहली बार रसोई में बनाई है स्वादिष्ट मसालेदार सब्जी, फिर बोली मुझे अब रोना आ रहा है। देखते हैं समाचार खेल जगत के। आईपीएल के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगा भारत। देखते हैं समाचार बाजार की। पावर प्लांट से कोयले की किल्लत, बिजली संकट का सता रहा डर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के रंग मंदिर में श्री जगत गुरु पंचाचार्य जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीदर में कल की बारिश के कारण मौसम में हल्का सा बदलाव रहा। मुंबई ने कहा कि भाजपा आलाकमान कैबिनेट विस्तार पर फैसला करेगा। कांग्रेस दंगों को बढ़ावा दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है, भाजपा प्रमुख का आरोप। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पीएम मोदी बोले पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधार हैं। आप दिल्ली जैसे शहर को संभाल नहीं सकते, पवार ने शाह पर साधा निशाना, उठाए कई सवाल। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।